they are telling classification of semiconductors. What we learned, semiconductors are intrinsic and extrinsic semiconductors. Here they are doing it on different bases. So they are telling that the crystal on a structure, crystalline, amorphous, single crystal, polycrystalline, elemental, compound. So we have learned that semiconductor silicon, germanium, and there is an semiconductor gallium arsenide, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे. सो जो दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं जनरली, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और एक ही होता है उसको हम लोग एलिमेंटल कंपाउंड कहते हैं. सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेमीकंडक्टर फ्रॉम दिस. सो यू सी दिस पिक्चर. What it says is occupancy of valence and conduction band of an intrinsic semiconductor A when temperature is 0 Kelvin, when temperature is greater than 0 Kelvin. So we have discussed this, but since they have good pictures to explain the concepts, so I'm sharing this. I'm trying to explain you so that you get an interest to go through the document. So you see, this is valence band, this is conduction band. When it is 0 Kelvin temperature, so this is completely filled, and conduction band is completely empty. So in a way, you can say the semiconductor we have as an insulator is at 0 Kelvin temperature. We have told this. How it is possible? Because there is no conduction electrons available for us. So when we increase temperature, what happens? Some electrons near to that edge goes to the conduction band, and then it creates holes. Electrons and holes are created, and that is why when we increase temperature, it starts conduction, because we have electrons and holes for conduction. So all these things we have discussed, but they have explained it very well, so you can go through it. Then you see, this is one question. So you can, we have solved similar kind of question. It says Fermi energy of an intrinsic semiconductor is 0.6 electron volt. This is Fermi energy, EF. And the low lying energy levels in conduction band is 0.2 EV above the Fermi level. तो ये बोल रहे कि एक एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड में जो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी लेवल से ऊपर है, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.6 plus 0.2, 0.8 हो जाएगा. And calculate the probability for occupation for this level for electron at room temperature. तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को हम लोग ऐसे 30 डिग्री ले लेंगे, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी लाइक 27 डिग्री. इफ यू टेक रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, देन केल्विन में कन्वर्ट करें तो 300 केल्विन हो जाएगा. So this can be calculated. You have solved similar kind of problems. So you see, this is a practice problem for you. You can do it. Then electrical conductivity. Electrical conductivity क्या होता है? मेटल के केस में जैसे हम लोगों ने समझा है, but semiconductor के केस में there are two type of charge carriers. So the thing we have to take into account. You see this picture, how in intrinsic semiconductors concentration the carrier electrical conductivity conduction process happens. So we have talked about it. You see, this is conduction band, this is valence band. Conduction band में क्या है? Electrons हैं. तो electrons का motion बोले कि if this is direction of motion, then electric current electron के motion के opposite होता है. So this will be the direction of electric current. And here, this is direction of motion for holes. So this is direction of current. So this is how we have we get this. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखोगे तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए तो इसमें काफी कुछ आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे इसका फॉर्मूला आता है कंडक्टिविटी का. तो कंडक्टिविटी जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और n e means number of electrons, e means charge on the electrons, so it will become total charge, and mu is the mobility कि कैसे मूव कर रहा है. मोबिलिटी एक पैरामीटर है. So ये for this is for electron, this is for holes. So since there are two type of charge carriers, so conductivity of a semiconductor, when we want to talk about conductivity, so it will be addition of both conductivity due to electrons, conductivity due to holes. So you have this formula for that. So E is the electric charge, Ne and Ns is the electron and hole concentration, and this is mobilities.
Mobility is like is in a parameter which talks about how mobile it is, कैसे वो कितना तेज मूव कर सकता है। फिर जैसे ये कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल. We have discussed this till we don't do doping, we don't add additional charge carriers by doping, like we make p-type, n-type. So till that scenario is not there, till we don't talk about doping, till we are discussing about intrinsic semiconductors. So this number of electrons and number of holes are equal, means this concentration is same. So we can write it as Ni, intrinsic carrier concentration. Ne, NH को ऐसे I कर दिया. तो अब ये फॉर्मूला जो था यहाँ पे Ni और NS दोनों को हम Ne कर दिए, तो हो गया ये. You can take common E, Ni, mu H plus mu E. This is electrical conductivity for an intrinsic semiconductor. This is how we get the formulas. So you see, this is not difficult to understand, and a lot of things they are trying to explain. Mobility कैसे define करते हैं, ये देख रहे हैं कि जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात किया, तो उनके साथ क्या होता है. एक तो ये हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, तो तेजी से मूव करेंगे. अगर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स तो आपस में टकराएंगे. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, और जिस वेलोसिटी से वो कलेक्टिवली मूव कर पाएंगे उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा. एक तो इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा है. ये जैसे यहाँ पे देखें, इन्होंने ऐसे समझाया है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ऐसे करके हम लोग इसको डिफाइन कर पाते हैं. So this is the formula for conductivity, and for intrinsic semiconductor we got this formula. तो ये सिंपल हो गया. फिर जैसे चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के लिए भी हम लोगों ने पहले डायरेक्ट फार्मूला जैसे देखा, यहाँ पे इसको थोड़ा समझाया गया है कि कैसे आता है. We have talked about this before as well कि there are two concepts. One is Fermi function. Fermi-Dirac distribution function जो था वो क्या बताता है कि कोई स्टेट ऑक्युपाइड है कि नहीं ऑक्युपाइड है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट ये बताता है कि कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं. किसी चीज की अगर हमको डेंसिटी पता है तो हमको ये पता चल जाएगा कितनी स्टेट्स अवेलेबल है. फिर हमको ये भी पता चल जाएगा दूसरी चीज से कि कितनी स्टेट्स भरी हैं, तो हमको कंसंट्रेशन पता चल जाएगा. कंसंट्रेशन तो मतलब यही है कि कितने सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है. सो हियर यू सी द सेम थिंग इज देयर. NCDE मतलब ये उसके बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कुछ रेंज लिया कि इस एनर्जी रेंज में कितने सारे चार्ज कैरियर्स है, तो उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं NEDE. GeVE, GE मतलब दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट. डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंड दिस इज फर्मी फंक्शन. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट कैरियर कंसंट्रेशन. तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला तो बोला है. उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक जब हम लास्ट टाइम एक सवाल कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला यूज किया था. लाइक आई कैन गो टू दैट स्लाइड फ्रॉम आवर प्रेजेंटेशन व्हिच वी वर यूजिंग बिफोर. यू सी दिस so we talked about this. ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लोगों ने पहले डेरिवेशन किया था, उसको देखा, फिर फर्मी फंक्शन बताए थे, और फिर हम लोगों ने बोला कि कैरियर कंसंट्रेशन ऐसे निकलते. ठीक है, GEF यहाँ पे लिखा है. So same thing is written here. Here they are using similar notation. This is for electrons, and when they will write for holes, so they will write here NH for hole. So they सबस्क्रिप्ट लगा दिया बस. तो ये फॉर्मूला है. यहाँ पे हम लोग इसको अगर टोटल नंबर हमको चाहिए तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे. NEDE को इंटीग्रेट कर देंगे तो N हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये हमको फिर ये बोल रहे हैं कि दिस इज फर्मी फंक्शन. वी ऑलरेडी नो दिस फर्मी फंक्शन का, ये फर्मी फंक्शन का तो फॉर्मूला हमको पता ही है. फिर ये बोल रहे हैं कि दिस इज दैट, एंड फर्मी फंक्शन कैसे वेरी करता है. दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड. EC इज द एनर्जी ऑफ
लोअर सबसे जो नीचे का एनर्जी स्टेट है, मतलब लोअर एज ऑफ कंडक्शन बैंड, उसको हम लोग ईसी लिखते हैं। ईवी लिखते हैं जो बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी होता है। और फर्मी लेवल के, हाँ सर फर्मी फंक्शन में +1 भी तो होता है। ओके, दिस इज नॉट जस्ट अ फर्मी फंक्शन, दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें होता था। दिस इज नॉट अ फर्मी फंक्शन एग्जैक्टली, इफ यू रीड इट यू विल गेट दैट ये क्या बात कर रहे हैं। तो दिस इज मैक्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है एमबी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। हम लोगों ने शुरू में, अगर तुमको याद होगा तो हम लोगों ने 3 डिस्ट्रीब्यूशन बात किए थे, तो ये यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे हैं। बट हम लोग जब वहां पे बात कर रहे हैं ये इस फंक्शन की, तो ये चीज थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा। तुमने बहुत अच्छा बात बताया कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं। We must be using always Fermi function. So this is why they are writing this Maxwell-Boltzmann distribution here. We need to look at it. Okay. But general हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। This is okay. This is always there for Fermi functions. This is not Fermi function. Saying for this region, FPO, they are talking about some particular region. If you read it, you see. Let us, we know that absolute zero temperature, only some of the low lying energy level in conduction band are occupied, while some of the higher energy level and balance band are empty. ये बोल रहे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के हैं जो ऑक्यूपाइड होंगे और सम ऑफ द हायर लेवल ऑफ बैलेंस बैंड आर एम्प्टी। जबकि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो सब खाली रहता है। देयरफॉर फॉर अ सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन only a tail region of Fermi distribution function is of interest, and for this region Fermi drag distribution reduced to Maxwell-Boltzmann distribution at the lower margin. तो ये कह रहा है कि when E is very greater than EC, okay, मतलब अगर कुछ एनर्जी बोल रहे हैं कि this is on this axis, this is energy, if we increase energy is greater or equal to EC, उस रेंज में बोल रहे हैं कि दिस फंक्शन, Fermi-Dirac distribution function for some particular set of condition, it reduces to this. Don't worry about this function as of now. Let us talk about so this is some particular case they are talking about, but we are trying to understand। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो फंक्शन होता है कैरियर कंसंट्रेशन का, यहाँ पे भी हमने देखा है कि इन जनरल दिस इज फर्मी फंक्शन, दिस इज नॉट मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। So they are talking about some special set of condition where it reduces to Maxwell-Boltzmann, but this is the general definition for carrier concentration. Let us try to go further how they are calculating carrier concentration, then we will address this particular issue. Then this is a formula they are telling about density of state. इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि e to the power half होता है, there is some function, and फिर क्या किए कि ये इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि n टोटल n इज इक्वल टू EC टू इंफिनिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो कंडक्शन बैंड के एनर्जी से लेके ऊपर तक का जो एनर्जी है, कितने लेवल हो सकते हैं, किसी का भी एनर्जी ज्यादा हो तो इट कैन गो टू एनी हायर लेवल। सो वी आर इंटीग्रेटिंग फॉर दैट फॉर दिस फंक्शन। तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये फंक्शन, ये इन्होंने अभी यहाँ पे इसको लिखा कि दिस इज n इज इक्वल टू GCE। फिर इसको और इसकी वैल्यू इन लोगों ने यहाँ पे रखी है और इसके बाद बता रहे हैं कि we can get to this equation. Okay, there are 2 more people are joining, Diksha and Manas. So they have solved this mathematical equation. So if we see this evaluation of integral, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के ज्यादा कोशिश करेंगे तो it becomes थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा। ये इसको इंटीग्रेशन किया गया, यू हैव सीन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेट करके ये इस रिजल्ट पे आते हैं। mc इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पाई mc स्टार। mc स्टार मतलब
mass of electron in conduction band, effective mass, kBT by h square 3/2 exponential EC minus EF kBT. ये फॉर्मूला है। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ये वाला फंक्शन है पूरा, इसको ये लोग NC से डिफाइन कर दे रहे हैं। लाइक इफ यू सी हियर, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन NP ऐसे निकाला, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे यूज किया था। कहीं पे फॉर्मूला ऐसे आया था डायरेक्टली, जहाँ पे NC करके डिफाइन किया गया था। लाइक ओके, इसी ही है ये। जैसे जब हम लोगों ने पहला एक सवाल किया था, दिस सवाल वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा EI ऐसे करके आया था। ये फार्मूला कहाँ से आए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। NC और NV ये सब कहाँ से आए हैं, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये फार्मूला इन्होंने सिंपल जो डिफिनीशन है कैरियर कंसंट्रेशन का, डेंसिटी ऑफ स्टेट और फर्मी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला मिलता है, फिर उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के लिए इंटीग्रेट किया जाता है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये मिलता है, और फिर हम इसको, ये पूरे फंक्शन को हमने NC डिफाइन कर दिया। सो वी गॉट NC इज इक्वल टू कैपिटल NC। इसमें देखोगे तो सारे कांस्टेंट हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन के लिए। टेम्परेचर कुछ एक रख दो, Kb is a constant, H is a constant, 2 pi is a constant. This is for particular semiconductor, particular set of condition. So this could be a constant. इसको हम लोग बोलते हैं NC is the effective density of state. तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमको मिलता है। If we want to have an electron concentration, so we can use this formula. फिर देखो इन्होंने एक एग्जांपल समझाया, थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे, so you will have a better understanding. मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसके डेरिवेशन में ना जाएं, अदरवाइज वी कैन गेट इनटू दैट, वी कैन डू दैट डेरिवेशन, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट एज ऑफ नाउ, कि हम ये जो फॉर्मूलाज है कैरियर कंसंट्रेशन का, वी कैन यूज इट और नॉट। फिर जैसे देखो ये क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अज्यूमिंग द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट्स फ्री मास। अगर हम ऐसा मान लें कि इफेक्टिव मास ऑफ फ्री मास इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है, तो कैलकुलेट इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर दिया है, बैंड गैप दिया है, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बताया, दिस इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसमें इन लोगों ने सारी वैल्यू रख दी, 2 पाई ये दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग मान लिए कि रेस्ट मास, जो फ्री मास होता है इलेक्ट्रॉन का, फ्री मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो ये ऐसे रख दिया, T रख दिया, एंड यू गॉट दिस इज NC, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। फिर पहले ये NC कैलकुलेट किया, दिस इज इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, and then ये carrier concentration means for a concentration of electron we calculate like this, EC, EF, kBT। तीन चीजें पता होना चाहिए। इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, NC तो हमको पता चल गया, EC is equal to EG कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो जा रहा है, बैंड गैप इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ इट विल बिकम EC, because we have assumed EV is equal to 0। अगर हम ऐसा मान लें कि EV at 0 Kelvin, then EC will be वही होगा जो बैंड गैप हो गया। तो ऐसे करके इसको माना, EF is equal to, जनरली फर्मी लेवल बीच में होता है, तो EC - EV/2, तो 1.2/2 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो हमको ऐसे EF मिल गया, और EC का वैल्यू हमने 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, बैंड गैप का जो था, ऐसे करके रख दिया, and you got this is the concentration, so 4.71 × 10⁻14 per meter cube. Thus carrier concentration in conduction band at room temperature is the order of 10⁻14. However, concentration of electron in metal is order of 10⁻28. एक जनरल नंबर का आइडिया देने के लिए बता रहे हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि in the order of magnitude clearly show that room temperature intrinsic semiconductors are very poor conductors. मेटल्स में जनरली ये इस तरह का ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है, और जो हमने जो कैलकुलेट किया, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैलकुलेट किया,
यहाँ पे कोई डोपिंग नहीं हुआ था, तो हमको कुछ ये ऑर्डर मिला, दिस इज इक्वल टू 10⁻14। तो एक तरह से इसको देख सकते हैं, पढ़ने का कोशिश कर सकते हैं कि ये डेरिवेशन, ये बेसिक कंसेप्ट यही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना स्टेट्स अवेलेबल हैं और फिर वो कितनी स्टेट उसमें ऑक्यूपाइड है, ये हमको फर्मी फंक्शन से मिलता है। उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो यही फार्मूला को यूज करके आगे अब इसमें कैसे कैसे ये सब चीजें की उसको हम बहुत डिटेल में जाना नहीं चाह रहे हैं। Otherwise, we can do all this derivation, we can do all this integration, but it will take more time and it will increase the complications. तो ये हम लोग अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूला की तरह यूज करें तो दैट विल बी बेटर इफ वी कैन सॉल्व सम न्यूमेरिकल। जैसे ये देखो न्यूमेरिकल ये सॉल्व किया, तो अगर हम कुछ न्यूमेरिकल easier for us, so we will do numerical problems, more numerical problems based on direct formulas. फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन के लिए किया, ऐसे सिमिलरली होल्स के लिए कर रहे हैं। सो दे आर राइटिंग NH फॉर होल। जैसे यहाँ पे देखो कि एक अलग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एट दैट टाइम वी वर यूजिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यूज कर रहे थे N, यहाँ पे जोड़ रहे थे P। तो वो NH और NP ऐसे डिफरेंट नोटिफिकेशन अलग अलग जगह होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे इसलिए भी बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर इफ यू फॉलो डिफरेंट बुक तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि ये इसको तो ऐसे कहते हैं, इसको तो ऐसे करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, बट एट लास्ट वी शुड बी फॉलोइंग सम, मतलब ऐसा ना हो कि एक ही नोटेशन को अलग अलग तरह से एक ही बात में, जब हम कोई एक बात कह रहे हैं तो उसको हम या तो NH लिख रहे हैं या P लिख रहे हैं। इट इज like we have to be consistent. फिर कंसंट्रेशन होल के लिए इन्होंने क्या किया, देखो ये जब होल के लिए हम लोग बोलते हैं फर्मी फंक्शन तो क्या करते हैं उसको 1 माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्टली वही फर्मी फंक्शन लिखा है, तो दिस इज ओनली फर्मी फंक्शन। सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ दिस बिकॉज दिस दे आर टॉकिंग अबाउट इट इज गोइंग फॉर एन स्पेशल केस। उस स्पेशल केस में ये इसमें रिड्यूस हो जाता है। इफ यू रिमेम्बर कि क्लासिकल वर्जन में पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ही था, बाद में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आए, एक फर्मी-डिराक और एक बोर्स-आइंस्टाइन। तो दोनों जो है वो कुछ स्पेशल सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं जिसमें वो जो क्लासिकल वर्जन है उसमें रिड्यूस हो जाएंगे। सो वी आर नॉट मच वरीड अबाउट दिस, वी नो दैट फॉर इलेक्ट्रॉन दिस फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिमिलरली व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट होल, तो क्या होता है होल मतलब वैकेंसी। जैसे हम लोगों ने बात किया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल। तो अगर कोई स्टेट ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन से तो उसका ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है फर्मी फंक्शन से। और हम अगर बोलें कि कोई स्टेट होल है कि नहीं है, तो होल मतलब वैकेंसी, तो इट इज अपोजिट टू दैट। तो वो स्टेट ऑक्यूपाइड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर हम स्टेट ऑक्यूपाइड नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस फर्मी फंक्शन। तो दिस थिंग कम्स हियर, FHE इज इक्वल टू 1 माइनस FE, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 से घटा दें तो होल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। So this thing we have already discussed before, and this is the same formula we have discussed for density of state। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ कैसे करेंगे, -infinity to EV, मतलब बैलेंस बैंड की जो एज है अपर का, उससे नीचे की सारी स्टेट्स है वहां पे होल्स हो सकते हैं। तो वी गेट दैट। और फिर ये फॉर्मूला आ गया, देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें फिर से इसको हम लोग इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोल देंगे NV, और ओवरऑल फॉर्मूला reduces to this। and again if you see तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया इसका। तो यही फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलाज को हम लोग डायरेक्टली एक शीट में बना के उसमें सारे फॉर्मूलाज जो इम्पोर्टेंट हैं उसको एंड में रख लूंगा, और देन ऑन ईच फॉर्मूला वी विल डू 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्ली
we'll take few classes extensively on numerical problems so that you can have a better practice of electron. जैसे कि last टाइम पे किसी ने सजेस्ट भी किया था कि हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा. सो पहले हम लोगों ने कंसेप्चुअली चीजों को समझा है. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस formulas comes into the picture without going into extensive proof of that formula, and then we will be using this formula to solve numerical problem. Okay, so अब बोल रहे हैं कि if we want to know, ये तो कैरियर कंसंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का और होल्स का. फिर कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल का नंबर बराबर होता है. So NEI or NHI is equal to NI. जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो ऐसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग देखो ये दिस इज EI ऐसा करके I लिख रहे हैं, तो I इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होता है. दे आर राइटिंग EFI लिखना चाहिए इनको थोड़ा सा, तो फर्मी फंक्शन हो जाता. तो EI इसको ये कह रहे हैं कि फर्मी फंक्शन EI माइनस मिड बाई गैप, इससे इन लोगों ने निकाला. हमको कैलकुलेट क्या करना था विद रिस्पेक्ट टू मिडिल बिंड गैप, तो EI की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, EI और माइनस इस बीच का जो लेवल है वहां पे. तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया EFI, दिस इज फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और ये जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, दिस फार्मूला इफ यू सी EFI इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसके डेरिवेशन को यहाँ पे दिखाया गया है. हम लोग इसको समझने का कोशिश करें कि पहले देखो हम लोगों ने कैरियर कंसंट्रेशन की बात किया और ये दो फार्मूलाज देखे, नंबर ऑफ होल्स एंड दिस आई कैन यूज सम. और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है. तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, सो वी कैन इफ वी कैलकुलेट वन सो वी नो अदर, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड NI. NI हम लोग इंट्रिंसिक के लिए कर रहे हैं. NI इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इट रिफर टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन. यही इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, यही होल का कंसंट्रेशन है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई डोपिंग नहीं हुआ है. फर्मी एनर्जी जो EF था उसको हम लोग EFI लिख रहे हैं, जिससे कि समझ में आया कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ही बात किया जा रहा है. ठीक है, अब जो पुराने इक्वेशन थे यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में वो इक्वेशन को तुम फॉलो कर सकते हो, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है. तो NEI मतलब NI को यहाँ पे रखा और we got this formula for holes, we got this formula. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया. सो आफ्टर यू सिंप्लीफाई दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, दिस इज सिंपल अलजेब्रा, यू विल बी एबल टू गेट दिस. NCNV क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर कंडक्शन बैंड, नॉट फॉर इन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर होल. और ये हमको डायरेक्टली मिल गया EC माइनस EV. इफ यू से व्हाट इज दिस EC मतलब बैंड में जो जैसे कि ये हम लोग बैंड डायग्राम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, तो वी राइट दिस इज EV, इसको हम लोग EV बोलते हैं. और EV मतलब ये थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, EV, और इसको हम लोग बोलते हैं EC. ठीक है, तो इसके जो बीच का गैप होता है ये तो बैंड गैप होता है, तो EC माइनस EV जो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हम लोग इसको EG लिख सकते हैं. तो ये हो गया, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया. सिंपली देखो क्या कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट जो हम लोग दो ऊपर फार्मूलाज का बात किया था उसी फार्मूलाज में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NI लिख रहे हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो e टू द पावर दिस दोनों एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों जुड़ के एक कंबाइंड फंक्शन बनेगा, इसमें EC माइनस EV टर्म आया. EFI यहाँ पे
ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जब हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. So we'll have this. So we got this formula. Ni square is equal to Nc Nv. This formula we got for intrinsic carrier concentration. Ni square is equal to Nc Nv exponential minus Eg by kBt. ठीक है. So अब हम लोग इसको बोले, जैसे you may ask, since we know expression Ne and Nh, what is additional information provided by this equation? So we can calculate electron as well as hole concentration using this equation if we have no knowledge about Fermi energy. ये इसका बेनिफिट है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हमको इस फॉर्मूले का क्या फायदा मिलेगा? अगर हमको कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है और सिर्फ हमको बैंड गैप पता है, तो हम इस इक्वेशन से कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू दैट. जैसे पुराने फार्मूला जो हम लोगों ने दो बात की है, यहाँ पे देखो हमको फर्मी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, इसमें भी हमको फर्मी एनर्जी चाहिए ही चाहिए. ठीक है, यहाँ पे EF है, so we need that फर्मी एनर्जी. और क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बराबर हो सकते हैं, कोई एक कैलकुलेट कर लेते दूसरा वैसे ही मिल जाता. क्यों हमने ये एक्स्ट्रा फार्मूला कैलकुलेट किया Ni करके, फिर Ni स्क्वायर निकला? इसका हमको बेनिफिट ये मिल रहा है कि सिर्फ बैंड गैप पता हो, अगर हमको फर्मी एनर्जी नहीं भी पता है, फर्मी एनर्जी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, देन आल्सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. ठीक है, सो दिस इज बेनिफिट फॉर दिस फार्मूला. तो ऐसे करके हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, लास्ट में एक शीट बनाएंगे, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ईच फार्मूला. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. वी गॉट दिस फार्मूला फॉर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. अब देखो इसमें कुछ बात कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का और क्या फायदा है. ये बोल रहे कि द वैल्यू ऑफ Ni स्क्वायर, मतलब दिस इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इज एन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फर्मी एनर्जी. ये फर्मी एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट इंप्लाइज दैट when concentration of free electron in intrinsic semiconductor increases, the concentration of hole will decrease correspondingly. ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. ये बोले कि अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ होल विल डिक्रीज करस्पॉन्डिंगली. और जैसे हमको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, तो कंसंट्रेशन भी उनका बराबर होगा. फिर अब हम लोग बात करेंगे, हमने जैसे कि पहले बात की कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. अभी हम लोग ये फॉर्मूला तब तो पहुंचे नहीं कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल क्या होता है. अभी हम लोगों ने ये देखा कि दोनों, एक तो ये हमको समझ में आया कि कैरियर कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं जिसमें फर्मी एनर्जी की इंफॉर्मेशन ना भी दी हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम निकाल सकते हैं. फिर हम इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की बात करने जा रहे हैं कि फर्मी लेवल कहाँ होता है. तो हम लोग ये जानते हैं कि जनरली फर्मी लेवल मिडिल ऑफ द बैंड गैप में होता है. तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन. तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दें. ये हमने पहले देखा है. अब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ऐसे करके हमने रख दिया. अब क्या होगा, टेकिंग लॉगरिथम लॉग ले लिया ऑन दिस एक्सप्रेशन, तो ये सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन ऐसे करके आ जाता है. और यही इक्वेशन you see EFI is equal to 1/2 EC plus EV plus 1/2 KVT log NV by NC. NV NC क्या है, इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट्स हैं. इनके फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, और उस फार्मूला में तुम देखोगे कि दिस इज NV, यही होल का मास, दिस इज MH स्टार. एंड जब हम लोग यहाँ पे NC का बात करते हैं तो इसी दिस इज ME स्टार. बाकी सब चीज कॉमन है. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे NC NV को यहाँ पे इसी
दिस इज द इक्वेशन। सिंपली क्या किया गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का नंबर बराबर होता है, इसलिए वो NH और NV को बराबर रख दिया गया। फिर दोनों साइड में लॉग ले गया। लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का लॉग जब लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा एंड ये लॉग हो जाएगा। लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया। दिस इज NVNC और NVNC का जब डिवीजन करेंगे और सब कुछ सेम रखेंगे तो वहां पे क्या आएगा, MH और ME और पावर 3/2 था। तो जो लॉग होता है, लॉग का पावर होता है तो वो इधर आ जाता है, तो 3/2 यहाँ आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 3/4 एंड इन दिस वे वी विल हैव दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहाँ हुआ, 1/2 EC plus EV और 3/4 KBT ln MH by ME। और if you remember, we used the same formula when we were solving one numerical problem, and last time हम लोगों ने एक numerical problem use किया था, तो we used this formula। और अभी यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला मिल गया। एक चीज थोड़ा सा इसमें हमको कंफ्यूजिंग लग रही है, यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं EC plus EV और हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है EC minus EV। ये अगर हम लोग इधर ले जाते हैं तो यू विल हैव सेम EI फर्मी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू EC minus EV by 2 प्लस 3/4 KT MH। तो ये ऐसा क्यों हो सकता, कैसे हो सकता है कि इन लोगों का प्लस आ रहा है, हम लोग का माइनस आ रहा है? तो ये चीज भी हमको थोड़ा समझनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज 1/2 EC plus EV। EC और EV दोनों को एनर्जी को, EC minus EV क्या होता है, EG होता है। EC plus EV और उसको by 2 कर रहे हैं, तो इस वजह से ये फॉर्मूला में डिफरेंस होता है। ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में EC minus EV by 2 कर रहे हैं, EC टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल और EC minus EV EG होता है, हमको ये समझ में आता है। बट EC plus EV EG होता है, ऐसा कह रहे, कैसे कर रहे हैं, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये यहाँ पे तो ऐसे लिख देना, तो प्रॉब्ली देयर इज सम कुछ मिस्टेक है इनकी। तो इसको हम लोग, ये इक्वेशन यू कैन टेक एन असाइनमेंट काइंड ऑफ थिंग। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको रखेंगे, लॉग लेंगे एंड देन विल चेक क्या सच में ये प्लस आ रहा है कि ये माइनस आ रहा है। So anybody can just look at it and then see whether it is plus, and if it is plus then this is not correct। EC और EV दोनों का जब जोड़ेंगे हम तो उसको डिवाइड करेंगे तभी भी क्या सेम आएगा, ये चीज वेरीफाई करना है कि EC minus EV EG होता है, ये तो हमको पता है, बट EC plus EV EG होता है ऐसा तो हमको नहीं पता है। तो दिस थिंग इज doesn't look like correct, but क्या कर रहे हैं, note the first term on the right hand side expression is depicted in figure 11.14 as energy in mid cap। Thus we may write, कौन सा फिगर है देखो, 11.14 कोई फिगर है यहाँ पे, दिस इज 11.4। ये तो मिनट होता है। EC और EV को अगर हम जोड़ देंगे तो बैंड गैप नहीं बनेगा। EC तो ये है, EC minus EV is EG, that thing is clear। So EC plus EV cannot be EG। So this thing is surely there is some contradiction, we have to understand it। So this formula is okay, but यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है, this is correct formula। EF, this is EI, हम लोग इसको EFI कहेंगे। EFI is equal to EC minus EV by 2 plus 3/4 KT ln MH star by ME, and everything is correct। You see this form, when you come here it is okay, but ये यहाँ पे कैसे इसको प्लस लिख दे रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा problematic है। So we have to look at कि in their derivation
how we are getting this thing. So we will be using this thing as a minus, और इसको हम लोग any of you if you can you know these formulas, इसको हमको बराबर रख के logarithmic लेके देखते हैं कि where is the problem, why they are writing it, this is not correct, at which step they are making mistake. So you can check that step somewhere, and I will also go through it and I will check कि ये कैसे कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला अभी हम लोग ये डेरिवेशन कैसे हुआ है इसको छोड़ के ऐसे हम लोग समझ ले कि हम लोगों ने क्या यूज किया. कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन इज इक्वल. उसको बस इक्वल करके उसका सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको ये फॉर्मूला मिलता है. सो वी कैन अगर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते तो शायद हम दोनों को करके एक स्टेप करके देख सकते थे. लेकिन अभी हम लोग बहुत डेरिवेशन में जाना अवॉइड कर रहे हैं. तो आई एम टेलिंग दिस इज द डॉक्यूमेंट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉजिक, क्या क्या लॉजिक यूज करते हैं. तो लॉजिक इन्होंने बस ये यूज किया है कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बराबर होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला था, होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला था, दोनों को इक्वल कर दिया गया. फिर उसको इक्वेशन को सिंपली सॉल्व किया गया है और सॉल्व करने पे हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है. दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट. अब देखो अगर हम टेम्परेचर जीरो कर दे, टेम्परेचर जीरो हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करेगा, बैंड गैप के बीचों बीच में लाई करेगा. ठीक है. अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा तो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. तो इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी सेड बैंड गैप दिया था, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ होल दिया था और टेम्परेचर दिया था. बोला था कि फर्मी लेवल का पोजीशन बताओ. तो ये सिंपल फॉर्मूला वही यूज किया और ये हमको इसमें क्या है ईसी ईवी तो ये बिना मतलब ही लिखे हैं. जब हमको ईजी पता है तो ईजी बाई 2 दे हैव पुट दिस वैल्यू हियर एंड इट इज सॉल्व्ड. तो हम लोग यहाँ पे ईएफ और ईसी और ईवी का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है अगर हम लोग के पास ये फार्मूला है. तो अगर सोचो कोई हम तुमको एक प्रॉब्लम दें, उसमें बोले कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल कैलकुलेट करो, उसका टेम्परेचर दे दें, इफ होल का इफेक्टिव मास दे दें, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास दे दें और बैंड गैप दे दें सेमीकंडक्टर का. सो यू नो दिस फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट इट. ठीक है. तो कुछ सिंपल सा फार्मूला का एक सीट बना लेंगे जिसमें सारे फार्मूला आ जाएंगे और फिर हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड दिस डेरिवेशन आल्सो वी कैन डू. हाउ वी कैन गेट दिस डेरिवेशन, इसका भी एक स्टेप नोट मैं एक हैंड आउट बनाऊंगा अभी और वो तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा. तो दैट विल बी बेटर बिकॉज डिफरेंट notes they are creating with confusion. So we will solve, we'll write a list of formulas on a copy and then we will solve numerical problem on that and it will be clear. Okay.